आया होमवर्क आया एक तो होमवर्क तू सैलो टेप ले का बेइज्जती होएगा अब फोटो बोलवानो बना रहे चलो homework 27 sum ka first 6 you got that then in the books of Mantri check the homework commence business with cash 1,20,000 goods 60,000 and furniture 65 I think your entry should be cash account debit stock account debit furniture account debit to capital account goods भी चलेगा goods या stock दोनों चलेगा ठीक है so cash stock या goods furniture account debit to capital total is 245,000 मिला this was a combined entry cash to capital stock to capital furniture to capital merged किया हुआ opened a current account with Bank of Baroda by depositing 75,000 entry should be Bank of Baroda account debit to cash या you can write bank to cash भी चलेगा bank account debit to cash okay? So Bank of Baroda to cash 75,000 being cash deposited with Bank of Baroda. Then cash purchases of 35,000 via NEFT. Cash purchase दिया है लेकिन NEFT दे दिया. NEFT देने का मतलब बैंक को जाता है. ठीक है? तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? Purchases account debit to bank account. Purchases account debit to bank account 35,000. Cash sales 55,000. Entry should be bank account debit to sales account. Bank account debit to sales account. Again there is NEFT. Purchase goods worth 20,000 from Amit and Company subject to a trade discount of 2%. So पहले तो 20,000 पे take 2% which is 400. Net amount is 19,600. It's on credit. So purchase account debit to Amit and Company that is 19,600. बराबर है? Purchase to Amit and Company 19,600. Credit sales to Kalpana 15,000. Entry is Kalpana account debit to sales account 15,000. Kalpana account debit to sales account 15,000. Okay? Kalpana account debit to sales account 15,000. मिला? सेव गड़बड़ी चलिए. Sales का भी debit कर. Kalpana account debit to sales account 15,000. मिला आपको? यहाँ तक मिला? Any doubts? Sales credit all incomes. Kalpana debit the receipts. Okay? Rule frame करो फिर आगे बढ़ो. Rule के बिना आगे नहीं बढ़ना. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का 16 paid cash to Amit and Company 9,500 who allowed us a discount of 100 rupees. Why are we paying to Amit? Who is Amit for us? Is Amit our debtor or creditor? Creditor. इधर वो बेचता है. So Amit is our creditor or debtor, guys? Creditor, right? Because we have purchased goods from him. If you check transaction number 10 वाला 10th को क्या हुआ है हमने purchase किया. Can you see that?
कितने का परचेज किया है, कितना पैसा देना है उसको, 19,600 देखा. बट नाउ इफ यू चेक, आर वी पेइंग फुल अमाउंट और ओनली पार्ट अमाउंट. ओके, तो ऐसा भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा एक साथ दे. समझो मैंने आपसे 50,000 के कुछ बाय किए, मुझे आपको 50,000 देना है. जरूरी नहीं मैं पूरे 50,000 साथ में दूं. आई विल पे यू 10,000 इन 7 days, रिमेनिंग 15,000 इन द नेक्स्ट 10 days, रिमेनिंग 15,000 इन द नेक्स्ट 10 days. ऐसे भी पे कर सकते हो. उसके हिसाब से आपका सीडी घटते जाएगा. अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, 1 महीने के बाद अगर पे करोगे क्रेडिट पीरियड के बाद तो कोई सीडी वीडी मिलने वाला नहीं. बट 1 महीने के अंदर जब भी आप पे करोगे तो थोड़ा थोड़ा सीडी मिलते रहता है. अगर आप 1 वीक में दे दोगे तो शायद 5%, 10-15 दिन के बाद पे करोगे तो शायद 2%, ऐसा करके आपको सीडी मिलते रहे. तो यहाँ पे यही हो रहा है. वी आर नॉट पेइंग फुल मनी टू अमित, वी आर पेइंग ओनली पार्ट. कितना दे रहे हो आप पर, हाउ मच आर वी पेइंग, 9,000. उसमें भी उसने डिस्काउंट दिया है, वो मिलते रहेगा आपको. बराबर है. एक से मुझे बताओ खाली अभी ये जो 100 रुपीज है, शुड इट बी 9,500 माइनस 100 9,400 या फिर 9,600 माइनस 100 9,500? 9,600 माइनस 100 इट इज 9,500. ऐसा पता चला बिकॉज पेड दिया, पे कर दिया है. तो पे करने के बाद थोड़ी डिस्काउंट कटेगा, डिस्काउंट काटने के बाद पे करो. गेटिंग दैट? Once the discount is deducted and after that you pay the money. So 9,500 is before discount or after discount? After discount. Okay. Paid and received is the hit. What is the hit? Paid and received. तो हमने अमित को बोला हम अभी आपको 9,600 दे सकते हैं. अमित तो बोला ठीक है, वैसे तो 19,600 ले रहा है लेकिन अभी आप 9,600 दे रहे हो तो मैं 100 रुपया डिस्काउंट देता हूँ. तो आप मुझे कितना पे करो, 9,500. हमने बोला ठीक है, बाकी का 10,000 फ्यूचर में पे किया जाए. उसका अभी कोई एंट्री नहीं करना. बाकी का 10,000 whenever you pay that time you will pass the entry. Is it clear? तो what is the entry for this payment? यहाँ की पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी, आती है आपको? अमित. You are paying to Amit, right? So Amit account debit to cash और भी कुछ आएगा to discount. याद आया ये कौन सा डिस्काउंट है, टीडीए की सीडी है? सीडी है, लेकिन इमीडिएट पेमेंट में नहीं आया, थोड़े दिनों बाद आए. बताया ना, जब तक 1 महीना खत्म नहीं होता तब तक आपको सीडी मिलते रहता है. तो अमित अकाउंट डेबिट शुड बी हाउ मच? 9,600 टू कैश टू डिस्काउंट बीइंग कैश पेड टू अमित एंड डिस्काउंट received. Being cash paid to Amit and discount received. Can you tell me how much still you are supposed to pay to Amit? 10,000. Sorry. Sorry. How much still you are supposed to pay to Amit? 10,000. Out of 19,600. You have already paid 9,600. मतलब 9,500 दिया लेकिन यहाँ तक सेटल कर दिया 96. बराबर है? There was discount. Next one, goods distributed as free samples 1,500. Once, why do you distribute goods as free samples? Advertisement. So what should be the entry? Advertisement account. What is advertisement for you? Expense. So debit all expenses and losses. Perfect. To what? Goods. Right? तो goods की जगह क्या लिखने का? पूरा. ना. Goods distributed as free sample. Goods distributed as free sample. स्टॉक कब यूज करना है? जब ओनर लाता है ना गुड्स, दैट टाइम स्टॉक. बाकी सब जगह पे जहां जहां जा रहा है दैट टाइम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज. सॉरी, योर एंड योर बिल, वही स्टॉक लगता है एक्चुअली, वही यूज कर. बाकी ओनर ला रहे तभी परचेज होना चाहिए, बट ठीक है यूज कर कॉलेज यूज कर. एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. याद है वो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ऐसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल.
इसका क्या लॉजिक है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट एंड एसेट घटा तो क्रेडिट। ओके, रूल बैक ऑफ द माइंड, रूल के साथ रहना, रूल छूटना नहीं चाहिए दिमाग से। रूल छूटा मतलब कल्याण, मतलब आप रटने के पैटर्न पे आ गए। बी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, डोंट रट्टोफाई, रूल फिट करो, लॉजिकली सोचो, रूल बेटर है तो ही आगे बढ़े। आगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ा और गुड्स एसेट घटा, बराबर। What if you would have paid check for your advertisement? Advertisement to bank. What if you would have paid some cash? Advertisement to cash. What are free samples, you know? What do you give in free samples? Goods, shampoo, soaps, basically goods. What is going out? Goods. That's why goods credit. You're paying check, then to bank. You're paying cash, then to cash. You're paying goods. Giving goods, so to goods. Next one. Received cash from Kalpana 4,800 on account and allowed her a cash discount of 200. How much were we supposed to receive from Kalpana? 15,000. दिख रहा है आपको? But how much is she giving us? अच्छा, is it 4,800 minus 200, 4,600 या 5,000 minus 5,000? क्यों? Again receive. पता है ना आपको? Received और paid amount दिया है. That is always after discount. Discount काटने के बाद. वैसे आगे उसके बाद थोड़ी कोई डिस्काउंट वापस करने वाले, काटने के बाद ही पैसे आते। तो लेने थे 5,000 अभी और काट के 4,800, यानी फ्री एंट्री पर है, आपको पैसे मिल रहे हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट एंड साथ में सीडी भी है ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सॉरी कल्पना अकाउंट, राइट। कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कल्पना। How much will write in cash? 4,800. Discount to Kalpana 5,000. B sorry, B cash received from Kalpana and discount allowed. मुझे एक बात बताओ, is it full settlement or part settlement? Part. पूरा पैसा आया कल्पना से? नहीं, पूरा नहीं आया। कितना रिसीव करना था आपको? 15,000 रिसीव करना था। उसमें से कितने तक का सेटलमेंट हुआ है अभी तक? सिर्फ 5,000। अभी भी कितना लेना बाकी है? 10,000, राइट। दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स। ओके, इसमें ट्रैक रखना जरूरी है, किससे कितना आया, किसको कितना गया। अभी तो एंट्रीज करो, फिर जब लेजर बताऊंगा ना तो लेजर अकाउंट में टप करके एक जगह पे दिख जाए, कल्पना अकाउंट, कल्पना का सब ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट, कैश का सब ट्रांजैक्शन। एट अ ग्लांस विल बी एबल टू फाइंड आउट कैश कितना है, कल्पना से कितना लेना है, या वो अमित को कितना देना है। विद इन अ मिनट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज थ्रू लेजर। इसमें तो आपको सब एंट्रीज देखनी पड़ती है, उधर एट अ ग्लांस मिलता है। वो ज्यादा इजी होगा। लेजर इज वेरी इजी। इससे भी इससे कॉपी करना, कॉपिंग इज इजी, राइट। So, return goods of 750 to Amit and company. Dharmi, return goods of 750 to Amit and company. What are the two accounts? Amit and company account to purchase it. Very good. Why did you debit Amit and company? Because we are debtors. We are debtor, they are creditor. We are debtors. Creditor बड़ा कम हुआ, Creditor घटा. घटा, so debit. And purchase returns क्या होता है हमारे लिए? Income. Income. So credit. Perfect. So Amit account debit to purchase returns account. All of you got this? या आप ट्रेडिशनल भी फिट कर सकते हो इसमें। अमित इज द रिसीवर, हम माल भेज रहे हैं उसको डिफेक्टिव, सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर लखेलू न हो तो આ નેટ પ્રાઇસ જ છે। हाँ, कुछ नहीं दिया तो कौन सा वैल्यू लिखने का? सेम वैल्यू। क्या अज्यूम करने का? नेट। गुड्स रिटर्न टू अमित एंड कंपनी, प्राइस कुछ नहीं दिया तो नेट। और एक ग्रॉस दिया होगा तो टीडी माइनस करना पड़ता है, याद है? कुछ नहीं दिया तो सेम प्राइस, ग्रॉस दिया है तो टीडी माइनस करना। 9th और 10th सब में किया था हमने। कुछ नहीं दिया तो सेम वैल्यू, ठीक है।
परचेज शेयर्स ऑफ 15,000 ऑफ HDFC बैंक. अभी HDFC बैंक मतलब HDFC बैंक इज अ कंपनी, उसके शेयर्स आप खरीद सकते. जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, रिलायंस है, वैसे HDFC बैंक है. आपने पट्टी पे देखा होगा CNBC. HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनके शेयर्स होते हैं, आप खरीद सकते. ये मैंने पेपर में भी डाला था. शेयर्स परचेज, व्हाट आर द टू अकाउंट्स? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट एंड कैश. कैश की जगह बेटर राइट बैंक, क्योंकि आप शेयर्स कैसे खरीदते हो हर बार? बैंक से. ओके, तो क्या एंट्री बनेगी फ्रेम को? Investment in share. What are investments, by the way? For a business? Assets. Debit what comes in. To what? Cash लिख सकते हो, सुमैया चला भी लेता है, बट बाकी कॉलेजेस नहीं चलेंगे. बेटर राइट बैंक, कॉमन फॉर ऑल. नहीं चला, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी सभी के सभी शेयर्स और बॉन्ड्स के ट्रांजैक्शन है ना, कैश से नहीं होते, डीमैट मतलब चेक से होते, बैंक से होते. तो आप कैश में खरीद ही नहीं सकते शेयर्स. आप बोलोगे ये लो 5,000 गांधी बापू रोकड़ा और मेरे को शेयर्स दो, कोई नहीं दे सकता. बीएससी में जाके कैश में कर ही नहीं सकता. मतलब आपको सर्टिफिकेट्स वो फिजिकल सर्टिफिकेट गया, स्क्रैप, सब ऑनलाइन डीमैट. 94 से ही बंद, धीरे धीरे हो गया 2004 में तो सब स्क्रैप. सो इट इज नाउ प्योरली ऑनलाइन, मतलब थ्रू चेक या फिर नेट बैंक, बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा. सो कितना आएगा अमाउंट? 15,000. रूल समझ आया? रूल, व्हाट आर शेयर्स फॉर द बिजनेस? एसेट. एंड पैसा आया कि गया? गया. शेयर्स आया, पैसा गया. बीइंग शेयर्स परचेज, बीइंग शेयर्स परचेज. ओके, सर तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के बदले खाली शेयर्स अकाउंट वो भी चल, चलेगा. वो भी चल. Then received goods returned by Kalpana ₹200. Hetri, tell me the entry. Sales return account. हाँ, so what will you debit? What will you credit? Return debit करना debit. Perfect. Sales returns debit. Why will you debit sales return? Hetri, Income. income or expense? Expense. Expense. Opposite of sale, debit or expense. Why will you credit Kalpana? Credit the giver, she is giving us. या फिर मॉडल में कौन है? कल्पना बता सकती है? Who is कल्पना in model? Debtor और creditor? Debtor. बड़ा की घटा? घटा. उसने माल वापस कर दिया ना, तो कल्पना घट गई. कल्पना मतलब उसकी हाइट नहीं घटी. डेटर घट गया. डेटर से पैसा लेना कम हो, बराबर है. जितना माल बेचोगे उतना डेटर बढ़ेगा, और जितना रिटर्न आएगा उतना डेटर कम हो जाएगा, बराबर है. सो सेल्स रिटर्न टू कल्पना, आई थिंक द डेट इज 29. इज दैट राइट? अभी दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 30th वन. ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप. रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट मंथ इन एडवांस बाय चेक 7,000. रेंट टू बैंक. अरे आपको लगता है रेंट टू बैंक, जो सबको लगा होगा मोस्टली, तो क्या लगा? इसका एंट्री होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. Prepaid rent account debit to bank account. Why did we use prepaid rent? Because advance. Okay, there is a concept behind it. You know what are concepts? Unsaid rules. Unsaid rules. जिस पे पूरा bookkeeping का सिस्टम बनाया हुआ, बराबर है. बता दो क्या है इसका मीनिंग, लिख दो पहले. प्रीपेड रेंट टू बैंक आएगा यहाँ पे. देखो एक कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है. व्हाट इज दैट वन कंसेप्ट वी हैव लर्न? व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी. पर्सनल कुछ भी हो रहा है उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं,
बराबर है। सो यहां पर क्या दिया है, रेंट पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। ओके, तो एक कंसेप्ट होता है और अकाउंट्स में, वो होता है अक्रूवल और मैचिंग। दो कंसेप्ट है, अक्रूवल एंड मैचिंग। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंट्स में, बुक कीपिंग में जब भी कोई एक्सपेंस इनकर होता है ना, तब रिकॉर्ड कर दो, और इनकम जब अर्न करते हो, कमा लेते हो, तब रिकॉर्ड कर दो। पैसा आना जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा आगे दो पीछे दो चलेगा, बट एक्सपेंस और इनकम का जैसे टाइम आ जाए ना, वैसे ही रिकॉर्ड कर देना, आगे पीछे मत कर। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में नट्टू काका है, उसकी सैलरी जनवरी महीना उसने काम किया, जनवरी मंथ पूरा काम किया, और सैलरी उसकी दे रही है 10,000। तो आपने सैलरी दी हो तो भी आप एंट्री करोगे सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर सैलरी सपोज नहीं दी, पे नहीं की, स्टिल आप एक एंट्री पास करो, दैट विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मतलब सैलरी को तो डेबिट करना ही है। वो कैसे बनता है आउटस्टैंडिंग एंड ऑल, आई विल टेल यू। बोलने का मतलब सैलरी तो डेबिट कर ही दे रहे, जनवरी महीना हुआ है ना, काम हो गया है ना, तो सैलरी को डेबिट कर ही दे देगा, पैसे चाहे दिए हो चाहे ना दिए। सिमिलरली आपने जेठालाल ने अपनी जगह रेंट पे दी और एक महीने का रेंट रिसीव करना है 20,000, जनवरी महीने का रेंट होता है 20,000। अब रेंट आ गया, कैश मिल गया, तो आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कैश आया रेंट इनकम। बट अगर पैसे नहीं आए, लेट हो गए, स्टिल आप एंट्री मार दोगे, आप एक एंट्री करोगे रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो कैसे बनती है सब समझ में आएगा। बट रेंट रिसीवेबल टू रेंट, रेंट को तो क्रेडिट दे ही दे, पैसे चाहे आए चाहे ना। ऐसा क्यों किया जाता है ये भी आपको समझ में आएगा। देखो, उसी के रिलेटेड ये भी है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग मतलब वही बोलता है कि मैच योर इनकम विथ योर एक्सपेंस, कि जितना एक्सपेंस दिखा रहे हो उतनी इनकम, न ज्यादा न। एक साल का एक्सपेंस दिखा रहे हो तो सामने एक साल की इनकम, 6 महीने का एक्सपेंस दिखा रहे हो तो 6 महीने की इनकम, उतना ही दिखाओ। तो यहां पर सपोज आपका एक साल का रेंट है, एक साल का रेंट है 50,000 रुपीज, 1 ईयर का रेंट है कितना, 50,000 रुपीज। ओके, आपने इस साल का रेंट पे कर दिया, दिस ईयर यू पेड करंट ईयर का रेंट 50,000 रुपया। तो आपका एंट्री क्या बनेगा, रेंट टू कैश 50,000। अब आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे थे, तो आपने सोचा चलो नेक्स्ट ईयर का भी अभी पे कर, तो आपने नेक्स्ट ईयर का भी रेंट अभी पे कर दिया 50,000, नेक्स्ट ईयर का भी रेंट अभी पे कर दिया 50,000। अभी उसकी एंट्री होनी चाहिए एक्चुअली प्रीपेड रेंट टू कैश,